فارسی پڑھنا سیکھے۔ سبق نمبر 1۔ فارسی ریڈنگ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے الفبائے فارسی یعنی فارسی حروف اور الفابیٹ کے بارے میں جاننا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات الفبائے فارسی کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات رکھتے ہیں۔ اگر معلومات نہ ہو تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے بآسانی آپ حضرات الفبائے فارسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ بائے فارسی، الف بائے فارسی، فارسی الفابیٹ، فارسی الفابیٹ یعنی فارسی حروف، فارسی حروف۔ الف، الف، الف۔ بے، بے، بے۔ پھے، پھے، پھے۔ تھے، تھے، تھے۔ سے، سے، سے۔ جیم، جیم، جیم۔ چے، چے، چے۔ ہے، ہے، ہے۔ خے، خے، خے۔ دال، دال، دال۔ ذال، ذال، ذال۔ رے، رے، رے۔ زے، زے، زے۔ ژے، ژے، ژے۔ سین، سین، سین۔ شین، شین، شین۔ صاد، صاد، صاد۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ طا، طا، طا۔ ظا، ظا، ظا۔ عین، عین، عین۔ غین، غین، غین۔ فے، فے، فے۔ قاف، قاف، قاف۔ کاف، کاف، کاف۔ گاف، گاف، گاف۔ لام، لام، لام۔ میم، میم، میم۔ نون، نون،
نون واو 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 ہے 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 یہ الف آ اے او آ ای او بے با بے بو با بی بو پے پھے پھے پھا پھے پھو پھا پھی پھو تے تھا تھے تھو تھا تھی تھو سے سا سے سو سا سی سو جیم جا جے جو جا جی جو جے جے چا چے چو چا چی چو ہے ہے ہو ہے ہا ہے ہو ہا ہے ہو خے خا خے خو خا خی خو دال دا دے دو دا دی دو زال زا زے زو زا زی زو رے را رے رو را ری رو زے زا زے زو زا زی زو ژے ژا ژے ژو ژا ژی ژو سین سا سے سو سا سی سو شین شا شے شو شا شی شو صاد سا سے سو سا سوی سو زاد زا زے زو زا زی زو تھا تھا تا تھے تھو تھا تھی تھو زا زا زے زو زا زی زو عین آ اے او آ ای او غین غا گے گو گا گی گو پے پا
फ फू फू काफ का के कु का के को कौ की कू खाप खा खे खो खौ खी खू गाफ गा गे गो गौ गी गू लाम ला ले लो लौ ली लू मीम मा मे मो मौ मी मू नून ना ने नो नौ नी नू वाव वा वे वो वो वी वू हे हा हे हो हो ही हू ये या ये यो यो ये यू। फारसी इबारत रीडिंग पढ़ने से पहले 3 बातें काबिल ज़िक्र है। पहला नंबर, फ़ारसी अल्फाज और कलिमात लिखते वक्त हुरूफ में हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप हज़रात को आसानी और सहूलत देने की गरज से मैं हरकत लगाऊंगा। फिर बताता हूँ। फ़ारसी अल्फाज और कलिमात लिखते वक्त हुरूफ में हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप हज़रात को आसानी और सहूलत देने के गरज से मैं हरकत लगाऊंगा। दूसरा नंबर, दुनिया के हर ज़बान और भाषा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ताल और लय होते हैं। फ़ारसी ज़बान के लिए भी डिफरेंस ताल और लय है। अगरचे मैं फ़ारसी ज़बान वाला नहीं हो, उसके बावजूद फ़ारसी कलिमा को फ़ारसी फ़ोनेटिक्स साउंड से तलफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करूँगा। तीसरा नंबर, इस दुरूस में फ़ारसी इबारत पढ़ूँगा और तर्जुमा करूँगा, लेकिन फ़ारसी के क़वाइदुन नहव के बारे में, क्योंकि मेरी गरज इस दुरूस से मुँह को खोलना है और चालू करना है। फ़ारसी क़वाइदुन नहव के बारे में पहले से ही काफ़ी तादाद से वीडियो अपलोड किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो, उसको क्लिक करके देख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े और भी वीडियो अपलोड करूँगा, कोई मुश्किल नहीं। आज हम फ़ारसी की पहली किताब सफ़ा नंबर 2 में इसे दर्स दूँगा। किताब की PDF वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन पढ़ना शुरू करने से पहले अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ारसी फ़ोनेटिक साउंड के कुछ क़वाइद और रूल्स ज़िक्र करूँगा। इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, तो खूब ध्यान से देखते रहे। कायदा नंबर 1, अगर कोई हरफ मफ्तूह यानी ज़बर वाला हो और उसके बाद अलिफ हो,
تو اس کا ساؤنڈ ہوگا وا وا وا، اس کا ساؤنڈ ہوگا وا وا، جیسے بابا، بے زبر الف، بے زبر الف، بابا بابا بابا، اس کا معنی ہے اردو میں باپ باپ، کے زبر کاف زبر الف، اس کے بعد رے، کھار کھار کھار، اس کا معنی ہے کام۔ اسی طرح کلمہ کے شروع میں اگر الف ممدودہ ہو، اسی طرح کلمہ کے شروع میں اگر الف ممدودہ ہو تو اس کا ساؤنڈ بھی پہلے کی طرح ہوگا، یعنی اس کا ساؤنڈ ہوگا آ آ، جیسے آب آب آب، اس کا معنی ہے پانی، اس کا معنی ہے پانی۔ اور ایک مثال، آموختن آموختن آموختن، اس کا معنی ہے سیکھنا، اس کا معنی ہے سیکھنا۔ اگر کوئی حرف مکسور، اگر کوئی حرف مکسور یعنی زیر والا ہو اور اس کے بعد ساکن والا یا ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا ای ای ای، اس کا ساؤنڈ ہوگا ای ای، جیسے بیرون بیرون بیرون، اس کا معنی ہے باہر، اس کا معنی ہے اردو میں باہر۔ اور ایک مثال لیجئے، سیب سیب سیب، اس کا معنی ہے ایپل ایپل۔ اگر کوئی حرف مضموم، اگر کوئی حرف مضموم یعنی پیش والا ہو اور اس کے بعد ساکن والا واو ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا او او او، اس کا ساؤنڈ ہوگا او او، جیسے بودن بودن، اس کا معنی ہے ہونا ہونا۔ اور ایک مثال لیجئے، آموختن آموختن آموختن، اس کا معنی ہے سیکھنا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر کوئی حرف مفتوح یعنی زبر والا ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا آ آ آ، اس کا ساؤنڈ ہوگا آ آ، جیسے بے زبر با بے زبر با با با، برادر برادر برادر، اس کا معنی ہے بھائی، اس کا معنی ہے بھائی۔ در در در، اس کا معنی ہے میں۔ اگر کوئی حرف مکسور یعنی زیر والا ہو اور اس کے بعد ساکن والا یا نہ ہو اور اس کے بعد ساکن والا یا نہ ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا انگریزی لیٹر اے کی طرح اے اے اے، جیسے بے زر بے بے زر بے بے، بیدا بیدا بیدا، اس کا معنی ہے تو جان تو جان۔ اگر کوئی حرف مضموم یعنی پیش والا ہو اور اس کے بعد ساکن والا واو نہ ہو تو اس کا ساؤنڈ ہوگا انگریزی لیٹر او کی طرح او او او، جیسے دال پیش دو دال پیش دو
दो दो दोख्तर दोख्तर इसका माना है लड़की, इसका माना है लड़की। प्यारे नाज़रीन, मैं जहाँ जिस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करूँगा आप लोग वहाँ सेम तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करेंगे। बस तलफ़्फ़ुज़ करते रहना करते रहना करते रहना। फ़ारसी की पहली किताब सफ़ा नंबर 2 में एक लफ्ज़ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लफ्ज़ को। क्या हुआ? खापेश खो, खापेश खो, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा नहीं है, दा ये गलत साउंड है, गलत तलफ़्फ़ुज़ है। दाल अलिफ दा, दा तो क्या हुआ? दोनों मिलकर खुदा, 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 खुदा। इसका माना है अल्लाह। इसका माना क्या है? अल्लाह। सफ़ा नंबर 2 में एक और लफ्ज़ है, क्या है यहाँ? रा ज़बर प्लस सीन पेश, उसके बाद वाव साकिन, उसके बाद लाम साकिन। क्या होगा? रसूल, रसूल, रसूल इसका माना है पैगंबर, पैगंबर। ठीक है जी। सफ़ा नंबर 2 में एक और लफ्ज़ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नून ज़बर लास मीम मीम अलिफ प्लस ज़ा साकिन। क्या होगा? नून ज़बर ना, मीम अलिफ मौ, मीम अलिफ। इसका साउंड किस तरीके इसका साउंड इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? मीम अलिफ मौ, मीम अलिफ मौ, मीम अलिफ मा ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है। ठीक है जी। मीम अलिफ इसका तलफ़्फ़ुज़ होगा मौ, 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 उसके बाद है जे, तो क्या होगा? नमाज, 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 नमाज इसका माना है सलात। ठीक है जी, सलात। सफ़ा नंबर 2 में एक और लफ्ज़ है, रा पेश प्लस रा वाव, रा वाव साकिन प्लस जे ज़बर प्लस है साकिन, रोज़ा, रूज़ा। इसका तलफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करेंगे? रूज़ा, रूज़ा। इसका माना है रोज़ा, सियाम। ठीक है जी, सियाम। सफ़ा नंबर 2 में एक और लफ्ज़ है, जीम पेश
मीम साकिन जुम, आइन ज़बर प्लस है साकिन। किस तरीके से हम इसको तलफ़ुज़ करेंगे? जीम जुमआ, 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 जुम, जुमआ, इसका माना है जुमा। जुमआ, इसका माना है जुमा। सफ़ा नंबर 2 में एक और लफ्ज़ है रा ज़बर मीम ज़बर प्लस वाद अलीफ प्लस नून साकिन, रमज़ान। ठीक है जी, इसका माना है रमज़ान। इसका तलफ़ुज़ हम कैसे करेंगे? रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान। उसके बाद एक और लफ्ज़ है हा ज़बर जीम साकिन, हज, हज। इसका माना है हज। इसका तलफ़ुज़ किस तरीके से करेंगे? हज, 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 हज। एक और लफ्ज़ है या काफ ज़बर आइन साकिन प्लस बे ज़बर प्लस है साकिन। इसका माना है काबा। इसका माना है काबा। इस लफ्ज़ को हम किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? काबा, 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 काबा। एक और लफ्ज़ है नाम। एक है लफ्ज़ है क्या क्या है? नून, नून ज़बर, उसके बाद है अलीफ, उसके बाद है मीम साकिन। तलफ़ुज़ किस तरीके से करेंगे? नौम, नौम। अगर आप ये कहे कि नाम, नाम, तो ये गलत तलफ़ुज़ होगा। सही तलफ़ुज़ नौम, नौम। इसका माना है नाम। इसका माना क्या है? नाम, इस्म, इस्म। एक और लफ्ज़ है जीम ज़बर, ये ज़बर प्लस अलीफ प्लस नून साकिन, आलम, आलम। इसका तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे? जीम ज़बर जा, है अलीफ, क्या होगा? हा, हा, जहान, 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 जहान। ठीक है जी। एक और लफ्ज़ है
खुदा का नाम, खुदा का नाम। ठीक है जी, इसका माना है खुदा का नाम। इसका तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे? नौ में खुदा, नौ में खुदा, नौ में खुदा। अगर आप इसको इस तरीके से तलफ़ुज़ करें कि नाम खुदा, नाम खुदा, ये फ़ारसी लहजा के एतबार से ये गलत होगा। ठीक है जी, सही तलफ़ुज़ होगा नौ में खुदा, नौ में खुदा। एक और लफ्ज़ है, इसका माना है जहान के खुदा, जहान के खुदा। इसका तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे? खुदाए जहान, खुदाए जहान, खुदाए जहान, खुदाए जहान, खुदाए जहान। लाम के नीचे ज़ेर है, इसका माना है खुदा के रसूल। इसको हम किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? रसूल खुदा, रसूल खुदा, रसूल खुदा। एक और लफ्ज़ है, इसका माना है जुमा का नमाज। ठीक है जी, जुमा का नमाज। इसके सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे? नमोज़े जुमा, नमोज़े जुमा, नमोज़े जुमा। इसका माना है रमज़ान का रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे? रोज़ाए रमज़ान, रोज़ाए, 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 रोज़ाए रमज़ान। इसका माना है काबा शरीफ का हज। ठीक है जी, इसको हम किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? हज काबा, हज काबा, हज काबा। सब, इसका सही तलफ़ुज़ किस तरीके से करेंगे? सब, सब,
सब यानी सुबह, 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 ठीक है जी, सुबह। एक और लफ्ज़ है शाम, शाम, इसका माना है शब, 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 ठीक है जी। शाम, शीन अलिफ क्या होगा, शाम, शाम। एक और लफ्ज़ है रूस, इसका माना है दिन, माना है दिन। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, रूस, 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 रूस। एक और लफ्ज़ है मीम ज़बर, इसके बाद अलिफ है, इसके बाद हे है, महीना। इसका माना क्या है, महीना। इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, माह, 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 माह। एक और लफ्ज़ है, इसका माना है बरस, सीन ज़बर, उसके बाद अलिफ, उसके बाद लाम साकिन। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, साल, साल, साल नहीं है, साल ये गलत तलफ़ुज़ है, साल ये सही तलफ़ुज़ है, ठीक है जी। उसके बाद एक और लफ्ज़ है वाव ज़बर, कफ साकिन, उसके बाद ता भी साकिन है, ठीक है, जिसका माना है वक्त, वक्त, टाइम, ठीक है जी, वक्त, वक्त। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, वक्त, वक्त। ये एक और लफ्ज़ है इसका माना है रास्ता, सड़क, रास्ता, सड़क। इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, राह, राह, राह। उसके बाद है एक और लफ्ज़ बाल, बा, बा ज़ेर, हे ज़ेर, शीन साकिन, ता भी साकिन है। इसका माना है बेहश्त, जन्नत, ठीक है जी, जन्नत। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, बाज़ेर बे, हे, बेहश्त, 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 बेहश्त। इसका माना है जहन्नम, जहन्नम। इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ किस तरीके से करेंगे, दू सख, दू जक, दू जक। एक और लफ्ज़ है आज़ाब, आज़ाब। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, आज़ाब, आज़ाब। इसका माना है आज़ाब, आज़ाब। इसका सही तलफ़ुज़ हम किस तरीके से करेंगे, आज़ाब।
اور پیارے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔